Hello students, today again I am continuing with my same chapter which is chapter number 6 banking. In my last lecture I told you that how credit is controlled by central bank. Central bank is the monetary authority who controls the credit in the economy. The central bank is having note issuing authority as well as central bank controls the credit in the market, but always that is controlled with the help of a commercial bank. And today we are on the topic commercial bank. Who are commercial banks? Commercial banks are under central bank, those who take the order from central bank, and central bank make the policies related to credit controlled in the market, and according to that order commercial banks create the credit in the market. If there is the problem of inflation in the economy, commercial bank will contract the credit in the market. If there is deflation in the market, commercial bank helps for the more creation of the credit in the money market. So it is not having any money supplier authority, but yet it supplies the money in the market through its credit creation policies. Now we are on some basic topics related to credit creation, that are primary deposit. What are primary deposits? Primary deposits are deposited by public with bank. These are the part of total deposits in the form of cash with commercial banks. आपके पास जितना पैसा फालतू है, surplus money, you will deposit in bank in the form of demand deposit. Earlier I told you that demand deposits are checkable, those that can be withdrawn at any time, and we can deposit the money in the banks at any time when we are having surplus money, and we can withdraw the money at any time from the banks whenever there is any requirement. Second are secondary deposit. Secondary deposits arises by bank on the account of loans to people. लोगों के पास जब if there is any requirement, then the people will move to the commercial banks for advancing the loans, because commercial banks helps the people in taking their surplus money, depositing their surplus money with it, and whenever there is a requirement to the people, advances the loan to the people. ये दो काम है बेटे कमर्शियल बैंक के मेन. और सेकेंडरी डिपॉजिट जो है वो ऐसे डिपॉजिट्स हैं जो कि प्राइमरी डिपॉजिट्स की हेल्प से ही आगे क्रिएट किए जाते हैं. सो प्राइमरी डिपॉजिट्स देखा जाए तो एक किस्म की आप लोगों की सरप्लस सेविंग है विच यू डिपॉजिट इन द बैंक्स. ऑन द अदर हैंड, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सेकेंडरी डिपॉजिट्स, it indicates borrowings of the depositors from banks. आप जितना पैसा बैंक में डिपॉजिट करवाते हो, that is the primary deposit, that will be in the form of cash. But on the other hand, if we are talking about secondary deposit, that is in the form of credit entry in the banks, not in the form of cash. Bank creates credit on the basis of primary deposits. More the primary deposits will be in the banks, higher the credit will be created in the market, and lesser the primary deposits in the market, lesser the credit will be created in the economy. Total demand deposit. Total demand deposit is combination of both primary deposits as well as secondary deposits. So total deposits is equal to primary deposits of the commercial banks plus secondary deposits of the commercial banks. Yes, in the last lecture I told you regarding credit multiplier. Credit multiplier, there is the opposite relationship between reserve ratio and credit creation in the market. Reserve ratio is that amount which is reserved in the commercial banks or central bank as per according to the monetary policies of monetary authorities of the central bank. Because if there is more money in the market, then a central bank will make the policy that there should be more reserve ratio in the banks or central bank
ताकि मार्केट में पैसा कम जाए, क्योंकि जितना रिजर्व हम ज़्यादा रखेंगे उतना ही मार्केट में क्रेडिट क्रिएट कम होएगा। सो क्रेडिट मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/RR। अगर हम बात करें क्रेडिट क्रिएशन की, दैट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द रिजर्व रेशो। क्रेडिट क्रिएशन इज इक्वल टू 1/रिजर्व रेशो इनटू प्राइमरी डिपॉजिट। More the primary deposits, more the credit will be created in the market. But secondly, it depends upon the reserve ratio also. More the reserve ratio, lesser the money will go to the market. Lesser the reserve ratio, more the money will go to the market. Suppose we are having 10% reserve ratio and there is 1000 rupees as primary deposit in the market. So by this way, we will be able to create 10,000 rupees in the market. That is 10 times more than the money deposited in the banks as primary deposit. Second is demand deposit. Third is demand deposit. Demand deposits are 1/reserve ratio into cash reserve. सेम बात वही होगी, जितना रिजर्व रेशो ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा मार्केट में, उतना ही कम मार्केट में क्रेडिट क्रिएट होएगा। इन प्रीवियस लेक्चर आई आल्सो टोल्ड यू रिगार्डिंग वॉल्ट कैश। व्हाट इज द वॉल्ट कैश? वॉल्ट कैश ऑफ द कमर्शियल बैंक्स इज इट्स वॉलंटरी कैश विच इट केप्ट अलॉन्ग विद इट फॉर द सेफ्टी ऑफ देयर फ्यूचर। क्योंकि जब भी कभी लोग अचानक से बैंक से पैसा ज़्यादा लेने के लिए विथड्रॉ करवाने के लिए आ जाएं, तो एट दैट टाइम बैंक मस्ट हैव इट्स वॉल्ट कैश, क्योंकि हर वक्त तो वो सेंट्रल बैंक के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकता। अदरवाइज ड्यूरिंग द क्राइसिस पीरियड कमर्शियल बैंक्स विल गो टू द सेंट्रल बैंक, बट पहले वो अपनी सेफ्टी के लिए दे ऑलवेज कीप सम वॉल्ट कैश अलॉन्ग विद देम एंड मोर वॉल्ट कैश। अब पर इसमें भी यही है, जितना वॉल्ट कैश ज़्यादा होएगा उतना ही क्रेडिट कैपेसिटी, जो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। सो बैंक्स को जब भी उन्होंने अपने पास वॉल्ट कैश भी रखना है, कैश रिजर्व, स्टैट्यूटरी रिजर्व्स, ये तो कमर्शियल बैंक को एज पर अकॉर्डिंग द ऑर्डर ऑफ सेंट्रल बैंक ही रखने पड़ेंगे, पर वॉल्ट कैश जो है ये उसकी अपनी वॉलंटरी मर्जी के अकॉर्डिंग है। सो इस हिसाब से वॉल्ट कैश वो अपनी मर्जी से अपने पास रखता है, बट इट शुड बी बैलेंस्ड। ये ना हो कि वो अपने पास वॉल्ट कैश इतना ज़्यादा रख ले कि मार्केट में क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाए। और एक बात और है बेटे, जो क्रेडिट क्रिएशन इन द मार्केट है, वो जितना पैसा लोग बैंक से विथड्रॉ करवाते हैं उससे कहीं ज़्यादा कमर्शियल बैंक के पास पैसा आता है। बैंक के पास जो वॉल्ट कैश होता है या बैंक के पास अपने रिजर्व जो मनी होती है, दैट इज मोर देन many times more than the money withdrawn by the people from bank। क्योंकि बैंक अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जानता है कि जितना भी पैसा लोग जमा करवा के जाते हैं उससे बहुत कम पैसा वो विथड्रॉ करते हैं। इस हिसाब से फॉर एग्जांपल वो सोचते हैं कि लो जी 10% पीपल विल विथड्रॉ फ्रॉम द बैंक्स, तो उस हिसाब से वो अपने पास 10% जो है वो अपने पास एज अ रिजर्व रख लेते हैं ताकि उनको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना आए। So bank do the work according to primary deposits in the market. Secondary deposits जो है वो तो बात की बात है। पहले बैंक अपने प्राइमरी डिपॉजिट्स को देखेगा। क्रेडिट क्रिएशन merely depends upon its primary deposits. Secondary deposits depends upon the primary deposits. Now we are on our next topic, how commercial bank creates the credit in the market. As we know, demand deposits are bank money. Demand deposits are bank money which are created by commercial banks by circulating system. Circulating system मतलब कि जब भी बड़े कमर्शियल बैंक के पास पैसा डिपॉजिट होता है तो उसी से वो आगे सेकेंडरी डिपॉजिट्स क्रिएट करता है बाय इन, और वो जो पैसा बैंक में डिपॉजिट रहता है वो आता तो कैश की फॉर्म में है, बट जब दोबारा री इशू होता है दैट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश, दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ चेक्स। उसकी जो कैश क्रेडिट एंट्री की फॉर्म में वो वापस डिपॉजिट होता है। तो इस तरीके से बेटा बैंक अपना क्रेडिट जब भी क्रिएट करता है तो उसके लिए सपोज देयर इज अ सिंगल बैंकिंग सिस्टम, प्राइमरी डिपॉजिट
equal to 1000 rupees and reserve ratio is 10% and 10% of 1000 is equal to 100 rupees. तो 1000 minus 100 that is equal to 900 rupees. And now the bank will create next मतलब कि आगे जो क्रेडिट है वो आगे 900 रुपीज़ का किसी को लोन दे दिया सपोज, और जिसको उसने लोन दिया है मान लो उसने किसी का पैसा वापस करना था, तो उसने क्या किया, उसने वो पैसा कैश की फॉर्म में नहीं बल्कि चेक की फॉर्म में उस बंदे को दे दिया। और अब वो पर्सन क्या करेगा बेटे, वो पर्सन चेक लेके जब बैंक में जाएगा तो बैंक उसको डायरेक्ट पैसे नहीं देगा, उसका एक नया अकाउंट खोलेगा। तो 900 रुपीज़ का अगेन एंट्री जो है वो बैंक में हो जाएगी एंड फिर उसमें से बैंक 10% रख के दैट इज 90 रुपीज़, अगेन 90 रुपीज़ माइनस करके 10 रुपीज़ विल गो टू एनी अदर पर्सन. Same process will go on. Again this money will come to the bank again 10%, that is 81 rupees, 729 rupees and so on. This process will go on. और जो बैंक है बेटे कमर्शियल बैंक अपने आप से कोई पैसा बनाता नहीं है। जो कमर्शियल बैंक है वो आपके ही पैसे को आगे की आगे सर्कुलेट कर करके इस तरीके से अपने पास 10 टाइम्स ज़्यादा डिपॉजिट कर लेगा। ये मैंने आपको पहले बताया था 1/10% इंटू 1000 दैट इज इक्वल टू 10,000। इस तरीके से कमर्शियल बैंक कैन क्रिएट 10,000 रुपीज क्रेडिट इन द मार्केट, राइट? एंड बाय दिस वे वी कैन मेक ग्रुप्स, कैश deposited, reserve ratio and loans. Initially it was 10,000 rupees, 10% reserve and by this way 900 rupees लोन जो है गए हैं बी पर्सन के पास। बी पर्सन जो है वो मार्केट में बैंक में 900 रुपीज़ का चेक लेके पहुंचेगा तो उसका 10% रख के अगेन 810 रुपीज़ एंड सी ग्रुप 810 रुपीज़ 10% अगेन 729 रुपीज़। इस तरीके से आगे आगे मार्केट में पैसा जो है वो जाता जाएगा एंड टोटल डिमांड डिपॉजिट इज इक्वल टू 1000 प्लस 900 प्लस 810 plus 729 and so on, that is equal to 10,000 rupees, right? So by this is the method commercial bank can create the credit in the market. Credit, how central bank can control the credit in the market? Central bank is having two types of the measures to control the credit in the market, because the main credit control is made by central bank through monetary policy. Monetary policy is related to how central bank can control the availability of money in the market, availability of credit in the market, and how central bank can control the rate of interest in the market so that the problems of inflation or deflation can be solved. And if we are talking about the credit control methods, very first is quantitative methods. Quantitative methods, first method is bank rate. Bank rate is that rate of interest at which commercial bank take loan from central bank, or rate of interest at which central bank lend the loans to commercial bank for their immediate needs. ठीक है? एंड इट इज अनसिक्योर्ड। और बैंक रेट जब मतलब कि जब देखो मार्केट में इफ सेंट्रल बैंक वांट्स टू क्रिएट मोर क्रेडिट देन बैंक रेट जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से एक्ट करता है, क्योंकि सेंट्रल बैंक रेट को अप कर देगा। इफ बैंक रेट इज हाई
then commercial bank will take more rate of interest from the general public. क्योंकि जब आप लोगों को पीछे से कोई चीज़ कॉस्टली मिलेगी तो ऑब्वियसली आप दूसरों को भी उसकी चीज़ को कॉस्टली ही सप्लाई करोगे. सपोज कर लो मुझे जब पैसा पीछे से कॉस्टली मिला है, एट हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला है, देन आई विल प्रोवाइड द लोन्स टू द पीपल एट हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट आल्सो. बाय दिस वे वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी. क्योंकि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो उस टाइम पे लोग पैसा लोन लेने की जगह बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि एट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट उन लोगों को भी प्रॉफिट का लालच होता है. सेकेंड इज ओपन मार्केट ऑपरेशन. ओपन मार्केट ऑपरेशन इज द रिलेशनशिप बिटवीन सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज. Sale and purchase of securities also related to indirectly with the rate of interest also, because जैसे बेटे मार्केट में फिक्स डिपॉजिट्स हैं. पहले कोई फिक्स डिपॉजिट 10 साल में 7 इयर्स में डबल होता था. अब बैंक अगर चाहता है कि मार्केट में क्रेडिट ज़्यादा मतलब कि कम करना है तो उस टाइम पे सेंट्रल बैंक कैन इंक्रीज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इनडायरेक्टली, और सेंट्रल बैंक कैन मेक द सिक्योरिटीज कॉस्टलियर. सिक्योरिटीज कॉस्टलियर मीन्स उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर हो जाएगा. तो एट मतलब इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि जो सिक्योरिटीज पहले 5 इयर्स में डबल होती थी अब वो 4 इयर्स में डबल होनी शुरू हो जाएगी. देन पीपल विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग देयर मनी इन सच टाइप ऑफ द सिक्योरिटीज. दिस वे द मनी फ्रॉम द मार्केट विल डिक्रीज, और जो पैसा फालतू का है वो बैंक्स में पहुंचना शुरू हो जाएगा. एंड सेम इन द टाइम ऑफ डिफ्लेशन सेंट्रल बैंक कैन मेक द सिक्योरिटीज चीपर. चीपर सिक्योरिटीज मीन्स से जो पहले सिक्योरिटीज 5 इयर्स में डबल होती थी, नाउ दीज सिक्योरिटीज विल डबल इन 6 इयर्स और मोर देन 6 इयर्स. सो लोग जो हैं वो सिक्योरिटीज में पैसा लगाने की जगह उस पैसे को अपने पास रखना शुरू कर देंगे. एंड दिस वे द डिफ्लेशन प्रॉब्लम विल बी सॉल्व फ्रॉम द मार्केट. थर्ड इज रेपो रेट. रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट. रेपो रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट at which government can sell their securities, or government can take the loans from the central bank for the short term, for the short period. और इसमें भी सेम है, बैंक रेट की तरह ही है. if the rate of interest is more then if repo rate is more then rate of interest will be more. if repo rate is low then the rate of interest will be low. It also depends upon the market situations. during the period of inflation रेपो रेट विल बी हायर, ताकि लोग अपने पैसे को, रेपो रेट जब हाई होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई हो जाएगा. देन पीपल विल स्टार्ट डिपॉजिटिंग देयर मनी इन द बैंक्स. एंड रिवर्स रेपो रेट. रिवर्स रेपो रेट इज ऑपोजिट ऑफ रेपो रेट. रेपो रेट में ये था कि कमर्शियल बैंक्स जो है वो सेंट्रल बैंक से जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन लेते हैं दैट इज द रेपो रेट. बट ऑन द अदर हैंड रिवर्स रेपो रेट is that rate of interest which is given by the central bank to commercial bank. If the commercial banks are having surplus money then they will deposit their surplus money in the central bank. At that deposit central bank will provide rate of interest to the commercial banks. That is known as the reverse repo rate. Fourth is CRR and SLR. ये मैंने आपको अपने पिछले टॉपिक में भी बताया था. CRR is cash reserve ratio which is kept as a reserve as per the order of central bank. But after collecting this money in the form of cash, commercial bank will deposit this money in the central bank because this money is kept reserve in central bank. And SLR is that rate of reserve rate which is kept in the form of liquid assets like gold or securities collected by commercial banks as per the order of central bank but kept itself in the commercial banks. और इसमें भी यही है, CRR SLR both also helps in controlling the credit in the market. If there is more money in the market then central bank will increase the CRR and SLR. एंड इस तरीके से जब CRR एंड SLR रिजर्व रेशियो ज़्यादा हो जाएगी, जैसे हमने क्रेडिट क्रिएशन में देखा था, रिजर्व रेशियो जब ज़्यादा होगी तो मार्केट में क्रेडिट जो है कम जाएगा. ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिफ्लेशन टाइम पे सेंट्रल बैंक की कोशिश होगी कि मार्केट में पैसा ज़्यादा से ज़्यादा जाए ताकि लोगों के पास परचेजिंग पावर इंक्रीज हो जाए. तो उस टाइम पे रिजर्व रेशियो जो है दैट विल डिक्रीज एंड मार्केट में पैसा जो है, मनी जो है
वो ज़्यादा सर्कुलेट हो जाएगी, जिससे कि हमारी डिफ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और नेक्स्ट हमारे पास है qualitative methods, which are also known as selective methods, because it doesn't affect all the banks, it affects only those banks who will take the loans from the central banks. इसमें क्वालिटेटिव में क्या होता है, वेरी फर्स्ट इज मार्जिनल रिक्वायरमेंट। मार्जिनल रिक्वायरमेंट मीन्स उसे जब भी कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लोन लेता है तो उस टाइम पे उसे कोई सिक्योरिटी एज मॉर्टगेज वहाँ पे डिपॉजिट करवानी होती है। नाउ द रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर मतलब कि सेंट्रल बैंक चाहता है कि मार्केट में पैसा ज़्यादा जाए तो वो अपनी इस मार्जिनल रिक्वायरमेंट को डिक्रीज कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, earlier you have taken the loan of 1 lakh and central bank is asking for the security of 1,25,000, ठीक है। अगर बैंक चाहता है कि मार्केट में पैसा इंक्रीज हो तो एट दैट टाइम सेंट्रल बैंक इस मार्जिनल रिक्वायरमेंट को कम कर देगा। इंस्टेड ऑफ 1,25,000 इट कैन बी 1,20,000। इनडायरेक्टली रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज हो गया, देन पीपल विल स्टार्ट टेकिंग, कमर्शियल बैंक्स विल स्टार्ट टेकिंग द लोन्स फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। On the other hand, if there is the problem of inflation in the economy, then central bank will increase this marginal requirement from 1,25,000 to 1,30,000, and it means the loan is getting costlier. Then commercial banks will start decreasing these loans. Instead of taking the loans, they will start depositing their money in the banks, and this will help in the solution of a problem in the market. Next is rationing of the credit. Rationing of the credit is related to fixation of the quotas for the loans to the commercial bank by the central bank. कई बार ऐसा होता है कि मार्केट में जब ज़्यादा पैसा सर्कुलेट है तो उस टाइम पे सेंट्रल बैंक क्या कर देता है, इसका कोटा फिक्स कर देता है कि इससे ज़्यादा लोन नहीं मिलेगा। फॉर दिस पर्पज लोन विल नॉट बी प्रोवाइडेड टू द कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। और उसमें क्या होता है, इफ देयर इज द प्रॉब्लम ऑफ डिफ्लेशन इन द इकोनॉमी तो इन कोटास को इंक्रीज कर दिया जाता है। फॉर जो लोन पर्पसेस हैं उसके लिए लोन जो है वो ज़्यादा इंक्रीज कर दिया जाता है। एंड इस तरीके से बाय दिस वे वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन फ्रॉम द मार्केट। नेक्स्ट इज मॉरल सॉशन। ऑल द कमर्शियल बैंक्स आर अंडर सेंट्रल बैंक. If commercial banks are not acting as the rules and regulations which are made by central bank, then central bank can take the direct action against commercial banks. उनको कैसे कि मतलब कि जैसे किसी कोई लोन जो है उनको देना बंद कर देगा या किसी स्पेसिफिक लोन को थोड़ा सा और कॉस्टली कर देगा, लोन के लिए जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको टफ कर देगा। दिस इज द वे to take the direct action against commercial banks. All the commercial banks has to follow the policies made by central bank, otherwise central bank will take direct action against the commercial banks. So this is the way by which central bank can control the credit from the market, and this is related to bank relationship. और सेंट्रल बैंक जो है वो बैंक्स के ऊपर अपनी पॉलिसीज को यूटिलाइज करता है एंड वही पॉलिसीज जो है कमर्शियल बैंक्स आगे पब्लिक के ऊपर एप्लीकेबल करते हैं और इस तरीके से मार्केट में से इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व की जा सकती है। सो दीज ऑल आर रिलेटेड टू द बैंकिंग सिस्टम, दैट हाउ बैंक्स क्रिएट द क्रेडिट इन द मार्केट एंड हाउ सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स द क्रेडिट फ्रॉम द मार्केट। ये चैप्टर में बेटा आप लोगों को 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। यू हैव टू लर्न दिस चैप्टर अकॉर्डिंग टू द 4 मार्क्स क्वेश्चंस, एंड 1 2 MCQs will be there. Thank you and God bless us all.